Today I welcome all of you to चाय पे चर्चा एपिसोड 2। सो आज हमारे साथ है प्रोफेसर एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच प्रोफेसर फिरोज। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते सारे व्यूअर्स को और तहे दिल से आप सबका स्वागत है इस शो में एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। थैंक यू सर। तो आज क्या चर्चा का विषय क्या है? सर आज कोई चर्चा नहीं करेंगे बट सर आपसे कुछ प्रश्नों का प्रश्न जरूर पूछेंगे। सवाल करेंगे? हाँ बिल्कुल जी सर। पूछिए। So sir, my first question is, after completion, if a student is looking for a job, how he or she can stand out in the competition? यस, तो बहुत अहम सवाल पूछे हैं आपने। सो बेसिकली two skills every candidate should focus on. Number one is business skills. Correct. Or the technical skills of business, and second is leadership skill. What all things comes under technical skills of business? ये technical skills of business में क्या क्या चीज़ें आते हैं, ये होता क्या है? Okay. Number one is sales and marketing and the ability to read financial statements, accounting and management. तो ये होते हैं technical skills of business. I repeat once again. Number one is the ability to read financial statements, sales, marketing, accounting and management. तो ये होता है technical skills of business. और दूसरे तरफ है leadership skill. ये क्या होता है? What is leadership skill? The ability, leadership skill is the ability to bring out the best in people. That's leadership skill. To bring out the best in people. That is leadership skill. Or else the people skill. How good you are at handling people. Or are you able to handle people or not? So these two skills, technical skills of business and leadership skills or people skills, if a candidate starts harnessing from today, or if he starts cultivating these two skills, 100% I can bet on this, or I'm pretty sure that he will be one step ahead in the competition. So sir, my second question is, why personal development is so important? Yes, indeed it is very very important. बहुत important है personal development. Let me tell you why. क्यों जरूरी है personal development? Okay. Most of the employees stuck in the mid role. वो बीच में ही अटक जाते हैं. Do you think that everyone will reach to the top management? No, never. It's not possible. Never. ये नामुमकिन है. सबको टॉप मैनेजमेंट में बिठाया नहीं जाता है. Right? So, personal development will help you to reach at the top. I'll make you understand this point with a lot of examples. Just imagine you are handling a team. Let's say team of 10 employees, and you are not good at handling people. You don't have people handling skill or people skill or leadership skill. What will be the result? People will leave your organization. It will lead to attrition. लोग छोड़ के organization छोड़ के चला जाएगा अगर आपके leadership skill और people handling skill नहीं है. दूसरा example, just imagine your boss have asked you कि what you did in the last financial year. पूरे साल में आपने किया क्या, अब बताओ. And you don't have presentation skill. आप में presentation skill है नहीं और boss को आप present नहीं कर पाए. Imagine you have worked, you did wonders, you worked really well, outstanding, but you failed to present in front of your boss. You don't have the presentation skill. आप बता नहीं पाओगे and definitely as a result you will fail to secure the promotion. You will fail to secure the promotion as a result. So the bottom line is personal development will help you to unleash your full potential.
It will help to unleash an employee's full potential, personal development, and it will help you to reach it will help you to level up, to take your success to the next level, or to reach at the highest point of success. Personal development can help you. और सर मेरा तीसरा सवाल है, एज अ रिक्रूटर हाउ कैन आई रिक्रूट द बेस्ट कैंडिडेट? व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू चेक? ये क्या सवाल पूछ दिया आपने? ये तो बहुत अहम सवाल है कि एक रिक्रूटर, एज अ रिक्रूटर आप क्या क्या चेक करोगे कैंडिडेट में. 4 things you should check. Number 1 is the future potential and his vision, the candidate's vision and the future potential. Number 2 is his previous performance and his track record. आप उनके track record check करोगे. Point number 3 is his skill. क्या skill है उनमें? And at the last is his will and dedication to work. उनके काम करने का इच्छा. क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं, देयर आर वेरी स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड मैन पावर, पर उनके विल बहुत कम होते हैं. देयर विल इज वेरी लो. दे नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बट दे डोंट वांट टू डू. इसके ऊपर एक वीडियो हमने बनाए हैं. क्लिक द आई बटन टू चेक द वीडियो. ओके सर, तो मेरा चौथा सवाल है, हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन माई गोल्स बिकॉज पीपल इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड. ऐसा बात है क्या? क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? मैं तो बहुत जल्दी हो जाता हूँ सर. अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? क्या चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं? सर मेरा मोबाइल सर. मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है. अच्छा, सो व्हाट कैन आई डू सर? क्या तो एक स्क्रीन लिमिट बना लो कि दिन में आप इतने घंटे मोबाइल को यूज करोगे, उसके बाद लिमिट कर दो. ओके. रात 8 के बाद मोबाइल को टच तक नहीं करोगे आप. स्क्रीन लिमिट बना लो. एक लिमिट द यूज ऑफ मोबाइल, उसको लिमिट कर दो. तो क्या करते हो आप मोबाइल से? सर डेली इंस्टाग्राम रील्स, डेली शॉर्ट्स देखना. सर बहुत एडिक्टिव है सर. अच्छा. मेरे को सर पूरा 8-10 घंटा पूरा 8-10 घंटे का स्क्रीन टाइम है सर मेरा. अच्छा, ऐसा बात है क्या? सर क्या करूं प्लीज सर बताइए. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो मतलब आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते जाते हो. यस सर. इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. आपको क्या लगता है टाइम क्या बहुत ज्यादा है क्या लाइफ में? एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट टाइम इज वेरी लिमिटेड. 25 साल तो आप सोने में लगा दोगे, 4.5 साल खाने में, और बचा कितना साल? कुछ तो बचा ही नहीं. फिर टू डू समथिंग ग्रेट और रिमार्केबल इन योर लाइफ, तो लिमिट कर दो अपने स्क्रीन टाइम को. ओके. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट व्हाट वाज योर क्वेश्चन दैट आप हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड. करेक्ट सर. क्या ये था आपका सवाल? जी सर. ओके. मेक अ विजन बोर्ड. आप एक विजन बोर्ड बना लो और सुबह शाम उस विजन बोर्ड को देखो. सुबह उठने का टाइम उस विजन बोर्ड को देखो, और रात में सोने जाने का टाइम, सोने से पहले उस विजन बोर्ड को देखो. सुबह शाम आप उस विजन बोर्ड को देखो. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड एट योर गोल्स. और डिस्ट्रैक्शन को जितना कम करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए. और ऑब्सेस्ड हो जाओ. यू मस्ट बी ऑब्सेस्ड विथ योर ड्रीम्स एंड गोल्स एंड टारगेट्स. विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड. थैंक यू सर फॉर सच अ गुड पॉइंट सर. सर मेरा इट्स माय प्लेजर. ओके. सो सर मेरा अगला सवाल है कि इज देयर एनी सक्सेस फॉर्मूला यू वांट टू गिव? इससे पहले मैं आपसे पूछूं और कितने सवाल है आपके? सर ये मेरा आखिरी सवाल है. पक्का? पक्का सर. ठीक है, चलो. सक्सेस फॉर्मूला तो मुझे क्या दोगे आप? मैं बताऊंगा आपको सक्सेस फॉर्मूला. तो सर चलो कोई बात नहीं, आई डोंट नीड एनीथिंग. बस आप ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते जाओ और वैल्यू ऐड करते जाओ लोगों के जिंदगी में. दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. ओके. तो सक्सेस फॉर्मूला यू वांट? यस सर.
So it's 1% luck and 1% talent, and 98% never give up is the 100% success formula. वाओ सर। ओके, और दूसरा और एक फॉर्मूला आपको देता हूं मैं कि जी सर। whenever you are willing to do something, whenever you are willing to do anything, or let's say in this way, before you do anything, just ask yourself that is it going to serve my purpose, or is it going to add value in my goals. Okay, कोई भी चीज करने से पहले एक बार सोच लेना कि क्या ये मेरे गोल स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है. अगर आपके गोल स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो ऐसे काम मत करो. रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स. ऐसे काम मत करो. ऐसे काम मत करो जो आपके गोल स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है. तो आपके और कोई सवाल है क्या? जी सर, सवाल तो बहुत हैं. अच्छा. बट सर वक्त बहुत कम है. ओके. तो सर मैं बच गया फिर. तो सर ये सीरीज कंटिन्यूअस पूरा. ऐसा बात है क्या? जी सर. मतलब ये चलता ही रहेगा? चलता ही रहेगा सर. माय गॉड. लोगों के सवाल खत्म नहीं होंगे और हमारे जानने की इच्छा बढ़ती रहेगी. वाओ. तो सर प्लीज आप यहाँ पर आते रहिए और इस एपिसोड का पार्ट बनते रहिए. ओके. So my viewers, how do you like this episode? चाय की चर्चा episode 2, comment down. Unleash and empower your true potential with learn, develop and grow. इंडिया सीखेगा तो और भी आगे बढ़ेगा. जय हिंद. जय हिंद.